This is Yamini Seni. We were doing class 9 subject science chapter number 6 tissues. We had done with the plant tissue, meristematic and permanent tissue and their types as well. So today we have to start it from the animal tissue. So what are the animal tissue? Now let us see it. So when we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. So, how do we move? With the help of muscles. And how with the help of muscles? Because muscles do contract and relax. Because of that, movement occurs. So now here you can see few structure like here you have seen the stomach. So there is some smooth muscle fiber shown into the stomach, and you are able to see the location of the muscle fiber as well, like a smooth muscle fiber which is a kind of cell, and it contains nucleus and other things which is there in the cell. Okay, now let us talk about it in more detail. So during breathing, we inhale oxygen. Where does this oxygen go? So it is absorbed in the lungs, and then is transported to all the body cells through blood. सो वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? तो ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो जो हमारे ब्लड सेल्स है उसके अंदर जाके अब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमारी लंग्स हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है. देन इसके बाद क्या होता है, ये हमें ऑक्सीजन जो है वो चाहिए क्यों? तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन. Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all the cells. So it also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of the functions they perform, we can think of different type of animal tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So blood is a type of connective tissue and muscle form muscular tissue. So now what they are saying that जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में बात करी थी, तो सिमिलरली उसी क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन और फूड है वो ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है, राइट. और जो भी वेस्ट होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एक पार्ट ऑफ बॉडी में, तो वो फिर डिस्पोजल के थ्रू निकलते हैं बाय लिवर एंड किडनी. तो जो ब्लड और मसल्स हैं ये दोनों ही एग्जांपल हैं टिश्यू के जो कि हमारी बॉडी में मिलते हैं. ब्लड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टिश्यू, ओके, एंड मसल एज वेल. सो अगर हम इनके फंक्शन के बेसिस पे देखें तो जो एनिमल टिश्यू हैं वो हमारे आप कह सकते हो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 कनेक्टिव, नंबर 3 मस्कुलर, नंबर 4 नर्वस टिश्यू. सो ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू है? दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. और मसल क्या फॉर्म करता है? दैट फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. Epithelial covers most organs and cavities within the body. तो ये protective tissue है, ये covering tissue है जो कि जो हमारे organs है उनको cover करके रखता है, और जो कैविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है उनको भी कवर करके रखता है. सो बेसिकली इसका काम आउटर लेयर का है, कवरिंग का है. It also forms a barrier to keep different body system separate. The skin is the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are made of epithelial tissue. Epithelial tissue are tightly packed and form continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, लाइक अ पैरेन्काइमा, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बहुत कम सी. So now obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. So as a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous
बेसमेंट दैट इज़ मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारी एपिथेलियल है वो किस तरह से वर्क करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल है, जो भी एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में वो इसके थ्रू ही होता है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट structures that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessel or lung alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. Squamous means scale of skin. So simple squamous epithelium are extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus of the lining of the mouth is also covered with the squamous epithelium. The skin which protect the body is also made of squamous epithelium. So skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. So since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो नाउ लुक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि जो हमारे एपिथेलियम है वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं क्योंकि उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग हैं। लाइक जैसे आपका अगर लंग एल्वुलाई है या जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है तो उन दोनों के वर्क अलग है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगी या जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एपिथेलियम के अलग अलग पार्ट्स हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस क्यूबिकल या क्यूबॉइडल और कॉलमनार या फिर सीलिएटेड। तो ये कुछ 4 टाइप्स इन्होंने बताए हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो जो स्क्वामस है वो थिन होता है और स्क्वामस का मतलब क्या होता है, मीन्स स्केल ऑफ स्किन, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। तो बेसिकली ये फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ईसोफेगस की लाइनिंग में पाए जाते हैं एंड साथ ही साथ ये जो स्किन को हमारी प्रोटेक्ट भी करते हैं। नाउ जो स्किन एपिथेलियल होते हैं, जो सेल्स ऐसे होते हैं, सो व्हाट हैपन्स इन दैट कि जो वियर एंड टीयर में मदद करते हैं ये, क्योंकि अरेंज होते हैं पैटर्न ऑफ लेयर्स में, इतनी सारी लेयर्स हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इतनी सारी स्केल्स वाली लेयर हैं। तो स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इसका नाम रखा गया है और ये बेसिकली वियर एंड टीयर, यानी अगर चोट वगैरह लगती है या अगर कोई भी जो सेल है वो टूटता है या फटता है तो उसको ये ठीक करने के लिए मदद करते हैं। सो नाउ अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ द नेक्स्ट वन जो कि है क्यूबॉइडल। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर, इसके अंदर जहाँ पे अब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होती है उन बॉडी पार्ट्स में ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन है या टॉल एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉलमनार, या इसका मतलब हुआ कि पिलर लाइक, ये पिलर लाइक होते हैं। एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, ये मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सीलिया। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इसमें सीलिया भी होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, एक ऐसे धागे धागे से निकले होते हैं, इनके से धागे लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो कि बेसिकली लोकोमोशन में या मूवमेंट में जो है किसी चीज़ को ऊपर नीचे लेके जाने में मदद करते हैं। सो दी सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट pushes the mucus forward to clear it. So this type of epithelium is the ciliated और columnar epithelium. तो ये जो है वो हमारा columnar epithelium का है। हम देख सकते हैं इसमें सीलिया विजिबल हैं, ये बड़े बड़े से। So these are our ciliated या columnar epithelium. So now let us come to the next one, that is connective tissue. Connective tissue क्या है हमारा, blood. So blood is a connective type of tissue or you can say a connective tissue. Why would it be called a connective tissue? तो इसका क्लू यहाँ पे है हमारे पास कि जो सेल है वो कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में स्पेस होती है। साथ ही साथ ये एम्बेडेड होते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो मैट्रिक्स हैं जो कि कैन बी लाइक जेली लाइक और फ्लूइड और डेंस और रिजिड, किस भी तरीके से हो सकती है। तो बेसिकली इसका जो मैट्रिक्स का नेचर है वो डिफ़र करता है कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू।
कि क्या उससे कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका फंक्शन। तो कनेक्टिव टिश्यू हम ब्लड को ही क्यों क्यों कहते हैं कि बिकॉज ब्लड इज़ देयर इन आर इंटायर बॉडी, हर जगह ब्लड है। सो दैट इज़ तो ये हर जगह से जो फूड है या जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करता है ब्लड, तो दैट इज़ वाई ये कनेक्ट करके रखता है। सो थ्रू दिस वी कॉल इट एज अ connective tissue. Now look at this activity which we have, activity 6.4. So in this, take a drop of blood on a slide and observe different cells present in it under a microscope. तो इसमें ब्लड सेल्स के बारे में अब है कि ब्लड जो है उसके अंदर भी अलग अलग सेल्स होते हैं। सो व्हाट आर ऑल दोज? ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के पास भी एक लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, फ्लूइड होता है। So in which red blood corpuscles यानी कि RBC, WBC, white blood corpuscles and platelets are suspended. RBC, WBC और platelets इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मा होता है दैट कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। जो इसके अंदर प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन होगा, सॉल्ट होगा और हार्मोन होगा। Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste material to different part of the body. That is why we call it as a connective tissue. It connects the body, right? So now bone is another example of a connective tissue. जो bone है वो भी एक तरह का connective tissue है। कैसे? So it forms a framework that supports the body. It also anchors the muscles and support the main organ of the body. ये इस main organ को support करता है और साथ ही साथ जो हमारे पूरी इंटायर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का उसको भी फ्रेमवर्क देता है। So now it is a strong and non-flexible tissue that would be the advantage of these properties for bone functions. So bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. So if I ask you कि जो हमारी bones है वो किससे बनी होती है, so that is the phosphorus and calcium compounds. साथ ही साथ जो bones हैं वो ये rigid होती हैं बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और ये नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, चूँकि इनके अंदर भी सेल्स होते हैं और वो इन सेल को एज अ रिजिड बना के रखते हैं सो दैट हमारा जो फ्रेम है बॉडी का वो स्टेबल रहे। So two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. इसके अलावा एक और connective tissue होता है नंबर 3 जिसका नाम है ligament. Ligament basically दो bones को आपस में जोड़ता है. So this tissue is very elastic. ये काफ़ी ज़्यादा elastic होता है. It has considerable strength. अपनी स्ट्रेंथ होती है इसके पास. और ligament contain very little matrix and contain bones, connect bones with bones. So ये जो है वो बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करता है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखेंगे इसे. थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. सो नाउ नेक्स्ट वन इज टेंडन्स. टेंडन्स जो है वो कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नंबर 4 टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज टेंडन. टेंडन जो है उसका क्या काम है? उसका काम है कि मसल से बोन को जोड़ना. अगर हम बोन और बोन की बात कर रहे हैं तो लीगामेंट, अगर हम मसल और बोन की बात कर रहे हैं तो टेंडन. ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो BLB. L मतलब लीगामेंट, बोन से बोन को जोड़ने वाला लीगामेंट है और मसल से बोन को जोड़ने वाला आपका टेंडन है. और दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, BLB एंड MTP. Now, tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. But जो इन दोनों में डिफरेंस है, जो टेंडन है उसके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जो लीगामेंट है दैट इज एब्सोल्युटली इलास्टिक, उसके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Now next thing, another type of connective tissue that is cartilage. Now number 5, cartilage भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं. द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. कार्टिलेज स्मूथ एंड बॉडी सर्फेस एट जॉइंट्स and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. We can fold the cartilage of the ears but we cannot bend the bones in our arms. सो नाउ लुक, जो कार्टिलेज है उसका मेन फंक्शन क्या है कि या हम कैसे उसे पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं. लाइक हमारी ईयर लोब है या जो हमारी नोज़ है उसे भी हम प्रेस कर सकते हैं. जो टिप ऑफ द नोज़ होती है दैट आई एम सेइंग ओवर हियर. तो बट हम अपनी जो आर्म है उसकी बोन को हम नहीं मोड़ सकते हैं, राइट. सो वी कैन नॉट डू दैट. सो एरुलर
connective tissue is found between the skin and muscle. Now number 6, दैट इज़ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. वो कहाँ पे मिलता है? वो हमें स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो के अंदर भी मिलता है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़. तो इसका क्या क्या काम है? इसका काम है कि रिपेयरिंग करता है, सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है इनसाइड द ऑर्गन्स. एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ where are fat stored in our body? So fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organ. जो adipose है जहाँ पे fat store होता है वो हमें मिलता है between the organ and the skin और जो हमारी इंटरनल ऑर्गन है उनके बीच में. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. एडिपोज जो है वो फ्लैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, इस टिश्यू के अंदर. स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इन इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. और जो फैट इसके अंदर स्टोर होता है वो इसमें इंसुलेटर की तरह वर्क करता है. So this is very important chapter, on this page is very very important because it contains so many things.